Hi guys, welcome in 100 day challenge of our gate and yeah top 100 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। जो लोग नए हैं अगर उन्हें नहीं पता तो आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, देन यू कैन सी द सोल्यूशन। और अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाता है पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। बिना किसी देरी के डे 32 का सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम सी एन और सी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद ओएस स्टार्ट करेंगे। डे 35 के बाद हमारा ओएस स्टार्ट हो जाएगा। तो ओएस आप रिवीजन कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक, राइट। चलो देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। A RAM chip has a capacity of 124 words of 8 bits each. Okay, so there is a RAM. Okay, so there is a memory called RAM. You know the RAM. What is a RAM? RAM is a kind of the memory. This is the primary memory. Okay, okay. What is the capacity of this particular memory? That is a 124 words, 8 bits each. Okay, so that is a you can say that ki 124 words, right? Right, and 8 bit is the size of the word size. Okay, so 1k into 8, this is given the size of the RAM. Okay, the number of 2 cross 4 decoders with enable line needed to construct a 16k into 16 RAM from the 1k into 8 RAM. Okay, so actually what they're telling, actually they're telling that we have a small RAMs. We are a small RAMs. The size of the RAM is, okay, so the size of the smallest RAM is, we have some small RAMs. Okay, so the size of smallest is size of small, you can just say that the RAM is 1k into 8. 1k into 8 यानी 1k मतलब 124 into 8 bits. You can say that is a, you can say that कि bits, ये इसको कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 124 वाइट, that is a 1 KB. So we have a 1 KB का cache memory, you can say RAM memory, sorry RAM memory, and we have to build this kind of memory. तो size of the largest कितना हो जाएगा, size of the largest RAM जो हो जाएगा, जो हमें बनाना है वो हो जाएगा 16 into 1024 into 16 bits. Okay, so you can simply convert it in byte. So this is a, you can say that KB 16 into, you can say that ki 2, this is a 2 if you convert it in the bytes, and KB simply. So that is a 32 KB. So we have to build a 32 KB RAM from the 1 KB RAM. Okay, so total smallest RAM needed, total RAM needed is 32 KB डिवाइड बाय 1 KB, क्योंकि हमें अगर देखो हमें n इंटू 1 KB की रैम्स 1 KB की एस रैम यूज करना है। मैं मान के चलता हूँ n यूज करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, n इज इक्वल टू 32. सो सिंपली वी कैन से दैट कि वी नीड 32 रैम्स. सो सिंपली वी हैव कैलकुलेटेड वी नीड 32 रैम्स. ओके, 32 we need 32 rams. Okay, the good question is that how many decoders needed. Okay, decoder. Okay, so let's see what exactly is the meaning of the decoder. Okay, so decoder, you know that what is a decoder. Okay, so if an input is given to the decoder, तो decoder एक डिवाइस है, देन 2 पावर n आउटपुट हमारे पास आता है। सिंपल के लिए मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास 2 बिट्स, मतलब 2 बिट का डिकोडर है, मतलब 2 बिट मैंने इनपुट दिया अगर एक पर्टिकुलर डिकोडर को, तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे, अगर 2 बिट दिया है तो हमारे पास कितने आउटपुट आएंगे, 4 आउटपुट आएंगे. ओके, सो वी नो दैट कि 2 बिट्स में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं. 2 बिट में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं. सो हमने 2 बिट ऑप्शन दिया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या क्या हो सकता है, डिकोडर क्या क्या आंसर दे सकते हैं हमें 0 0 दे सकता है. 2 बिट अगर हम दिए तो 0 1 हो सकता है, और 1 0 हो सकता है, और 1 1 भी हो सकता है. ठीक है, so this is the possibility. Okay, so if we have a decoder of n input, then we can say that ki output will be 2 power n lines. Okay, n अगर input bit का line input है तो 2 power n होगा. Okay, so here why decoder needed. See, we have a RAM. Okay, we have a RAM. Okay, so starting अगर मैं smallest की बात करूँ, smallest की तो देखो smallest जो RAM है हमारी वो कितनी है, 1 KB की है. ठीक है, 1 KB की, 1 KB की समझने की कोशिश करते हैं. मतलब ये सेल नंबर 1 होगा, सेल नंबर 2 होगा, सेल नंबर 3 होगा, यहाँ पे वर्ड नंबर 1 होगा, वर्ड नंबर 2 होगा, वर्ड नंबर 3 होगा. अच्छा, कितने का है ये, उन्होंने बोला है कि वर्ड 1 इज इक्वल टू वर्ड 1 इज इक्वल टू वर्ड 3 और वर्ड 1023. ये कितने साइज के हैं, 1 बाइट के. इन सबका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एड्रेस होगा. ओके, सो एड्रेस नंबर सपोज दैट इसका 1 है, एड्रेस इसका 1 है, एड्रेस 2 है, एड्रेस 3 है. सो 1 KB है, तो 1 KB को एड्रेस रखने के लिए कितने बिट्स लगेंगे, तो एड्रेस साइज जो होगा, एड्रेस साइज स्मॉलेस्ट की बात हो रही है अभी,
हो जाएगा log to 1 KB मतलब 1024, that is a 10 bits. Okay, so we will have a 10 bits of the address size. So whenever CPU will access the RAM, they will send the 10 bits address. 10 bits का क्या करेगा, एड्रेस सेंड करेगा, और ये 10 बिट्स किसी में भी जा सकता है, ये 10 बिट्स किसी में भी जा सकता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकता है। तो यहाँ पे एक डिवाइस यूज होगा, दिस इज कॉल्ड द डिकोडर, दिस इज कॉल्ड द डिकोडर। आपको समझ में आ जाएगा डिकोडर हम क्यों यूज कर रहे हैं। सी, हमारे पास जो रैम है, जो छोटा वाला रैम है, उसका साइज 1 KB है। 1 KB में हमारे पास कितने वर्ड है, 1024 वर्ड है। हर एक वर्ड को एक एड्रेस पे रखा जाएगा, और एड्रेस कितने होंगे, 10 बिट्स का हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं 10 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एड्रेस कैसे होगा, 0000000, फिर 01, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसा 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ एड्रेसेस वी हैव लाइक दिस। ओके, so whenever we'll get 10 bits input, this will convert to the any of the address. This is the smallest RAM. Now we have a constructed a biggest RAM, that is a 32 KB. Okay, जब हमारे पास 32 KB का रैम आया, और वहां पे उन्होंने एक चीज मेंशन की है, उन्होंने मेंशन की है कि जो हमारा कैपेसिटी होगा, देखो जब हम किसी भी मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1K इंटू अगर 8 लिखा है ऐसा, तो ये टोटल क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। ये क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है, और ये होता है सेल साइज, सेल साइज और एड्रेस साइज। ओके, तो आई होप कि आपको स्मॉलेस्ट वाला समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब बिगेस्ट वाले को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्मॉलेस्ट वाले में आपने समझा कि हर एक जो सेल की कैपेसिटी थी, हर एक लोकेशन की जो कैपेसिटी थी, वो कितनी थी, 1 बाइट थी या 8 बिट थी। आपने इस चीज आई होप समझा होगा अच्छे से। वही मैं समझा रहा था अभी आपको कि हमारे पास जो 1 KB का रैम था छोटा वाला, 1 KB में हर एक लोकेशन का साइज कितना था, 8 बिट था, यानी 1 बाइट था। ओके, नाउ हमारे पास जो बड़ा रैम आया वो तो कितना है, 32 KB का आया। 32 KB में देखो उन्होंने रैम का ना साइज बता रखा कि कैसे है, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बता रखा ना वो बता रखा, साइज नहीं स्ट्रक्चर। सो सी दैट दे आर टेलिंग दैट कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 16K इंटू 16 का रैम। मतलब वो क्या बोल रहा है, पहले जो हमारा छोटा वाला रैम था उसका कैपेसिटी 8 बिट का था, अब हमें उसको बढ़ा के कितना करना है, 16 का करना है। ओके, 16 का करना है, तो हर एक रैम की कैपेसिटी भी बढ़ानी है मुझे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैम जो अरेंज करना है, रेंज का जो अरेंजमेंट होगा रैम का। वैसे हमारे पास रैम कितनी आई है, 32 रैम्स आई है, हमने कैलकुलेट की अभी, कैलकुलेट ऊपर देखो 32 रैम्स वी हैव कैलकुलेटेड आई थिंक। सो 32 रैम्स लगेगी। अब देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर रैम को, देखो छोटी छोटी मेरे पास 32 रैम्स लग गई, एक रैम ये हो गई, एक रैम ये हो गई, एक रैम ये बहुत सारी मेरे पास 32 रैम्स आ गई ना। अब हमें अरेंज कैसे करना है, उन्होंने ये बोला है हमें, देखो पहले हमारे पास 1K इंटू 8 1K इंटू 8 का था, तो हमारे पास पहले एड्रेस कितने थे, एड्रेस छोटे वाले में कितने थे, हमारे पास 2 पावर 10 थे ना, 1024 थे। और हमारे पास डेटा साइज कितना था, डेटा मतलब सेल साइज, डेटा सेल साइज बोल सकते हैं, वो कितना था, 8 बिट का था। नाउ दैट टेल दैट कि हमें एड्रेस कितने चाहिए, यहाँ पे चाहिए 4 इंटू 2 पावर 10, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 10, और हमारा डेटा साइज कितना चाहिए, 16 का चाहिए। मतलब 2 पावर 14 एड्रेस चाहिए, साथ में डेटा साइज भी हमें एक पर्टिकुलर सेल की बनानी है। मतलब एक पर्टिकुलर जो रैम था वो 8 बिट दे पा रहा, तो हम क्या करेंगे इस बार, हम बोलेंगे सर आप ऐसा करो, इस पर्टिकुलर रैम को यहाँ पे ले लो और एक पर्टिकुलर रैम को यहाँ पे ले लो। तो अब हमें अरेंजमेंट कैसे करना है, हाइब्रिड मोड पे करना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा हो तो हमें एक रैम यहाँ पे लगानी होगी, एक रैम यहाँ पे लगानी होगी। आई होप यू गॉट इट, राइट। सो हमारे पास जो लाइंस आएंगी अब इस बार, मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर रैम यहाँ पे आई, एक यहाँ पे आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लाइक दैट। 27 के बाद 28 29 30 31 एंड यू कैन से दैट 32। जो भी मैंने शायद गिनती कहीं पे गलत कर दी होगी, दो का ये पहाड़ा है, ठीक है। नाउ सो वी हैव दिस इज द वन रैम, दिस इज द वन रैम। कितनी रैम यहाँ पे हो गई हमारे पास, टोटल 32 रैम हो गई। और हमने अरेंज कैसे किया है उन्हें, हाइब्रिड मोड में, हमने हॉरिजॉन्टल भी किया, वर्टिकल भी। नाउ यू कैन से दैट कि अब देखो हमारे पास ऐसी रैम आ गई, ठीक है। अब जब हमारे पास एक डिकोडर बीच में आएगा, अगर ये एड्रेस जनरेट करेगा, तो ये वाला एड्रेस जो जनरेट करेगा ये दोनों रैम के लिए कॉमन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे एड्रेस जनरेट करेगा वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस जनरेट करेगा तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस जनरेट करेगा तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस जनरेट करेगा तो कॉमन हो जाएगा। नाउ वी हैव हाउ मेनी लाइंस, वी हैव यू कैन से दैट कि 16 लाइंस। ओके, वी हैव 16 लाइंस। तो हमें डिकोडर कितने का लगेगा, हमारे पास 2x4 का ही डिकोडर है। एक्चुअली हमारे पास डिकोडर कितने का है, 2x4 का ही है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2x4 का ही डिकोडर है। तो कैसे डिकोडर कैलकुलेट करोगे, देखो मैं बाद में फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, डोंट वरी। वी हैव हाउ मेनी एड्रेस लाइन, वी हैव हाउ मेनी एड्रेस, 16 एड्रेस लाइन। ओके, so actually these 4 lines can be calculated in one way, these 4 lines can be decoded, then these 4 lines can be decoded, these 4 lines can be decoded। so यहाँ पे 2x4 का एक लगा दिया हमने, यहाँ पे 2x4 का लगा दिया, यहाँ पे 2x4 का लगा दिया, यहाँ पे 2x4 का लगा दिया। now how many decoders we needed 4 now, but actually यहाँ पे इनको भी तो डिकोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें एक 2x4 का डिकोडर यहाँ पे लगेगा। तो टोटल हाउ मेनी डिकोडर्स, 5 डिकोडर लगेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू टैकल। अच्छा, अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि सर हमको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है।
सी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हमें कितने का डिकोडर चाहिए था, हम हमारे पास कितने बाई कितने का था, हमारे पास 2/4 का डिकोडर था, और हमें कितनी लाइन से हमारे पास 16। तो सिंपली अगर 2x4 का डिकोडर है आपके पास, और आपको मान लो XY16 का बनाना है, कितने बाई कितने का बनाना है आपको, लास्ट में आपको जो इनपुट लाइन 16 दी हुई है, आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन में 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई 4 क्यूब, ऐसे करते जाना है। ठीक है, ये वाला पकड़ना है, ये वाला पकड़ना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 + 1 5 इज द आंसर। सो दिस इज द शॉर्टकट ऑल्सो, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। I hope you got it this question, and there will be no any confusion. So 4 + 1, that is a 5 decoder needed. You know that why 5 decoder needed? I hope you got it, right? Okay, so thanks for watching for day 32. अगर आपको समझ में आया हो decoder वाला part, then you can just subscribe the channel and you can stay in this particular channel. Thanks for watching.